born in Pakistan, but when I came here, you know, I can still recall the aggression and the name calling and the apologies, and so, you know, this forms part of my whole artistic expression. And the politics made sense to me completely, because I was kind of suppressed by my own culture, but also I was oppressed by British culture. What is it that you and your generation has in terms of confidence to fight the system here that your parents didn't have? History. I still, you know, I don't even see myself as British. I don't even want to be British. You know, I'm happy to be Muslim, I'm happy to be Pakistani, I'm happy to be Asian, but I've got no kind of allegiance to the British crown or whatever. अकी नवाज का काम है लोगों को परेशान करना। उनका अपना बैंड है फंडामेंटल और एक अपना रिकॉर्डिंग लेबल भी है। पिछले 25 साल से जितने म्यूजिशियन रहे हैं उतने ही बड़े इनकलाबी रहे हैं। उनके गाने, उनके वीडियोस बार बार बैन होते चले जाते हैं, लेकिन उनका काम जारी रहता है। When you say that you felt suppressed from both where you were living and what you were, so what third route did you find in trying to find that identity? Well, the only third route that I could find was one that was completely free of both. Although I always kept within the community, lived in the community, stayed in the community, and I was a completely and utter, rebel and almost like a misfit. And everybody would say, "Oh, don't hang around with Qureshi's son. You know, he's a bad influence." But there was certain, there were certain kind of disciplines that I kept. You know, I never took drugs. I never drunk alcohol. So is it that maybe there was something about this identity that maybe you were expressing at a time and people didn't express it like that, but by now they have understood? I think that I really related to my father's generation and all the politics that went on in the streets of Bradford. So here they had their confusion when they looked at me. They would say, "Well, here's a guy, he's totally crazy, got long hair, spiky hair, yellow hair, pink hair, whatever." And then they would see me actually protecting our community. I felt that mainstream English society had absolutely no idea of what we were, how we were, what our different layers were. जब भी लंदन में किसी से ये बात होती है कि मैं यहाँ के पाकिस्तानियों की जिंदगी में दिलचस्पी रखती हूँ, तो सब पूछते हैं, ब्रैडफर्ड गई? ब्रैडफर्ड को लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, लिटिल पाकिस्तान, मिनी मीरपुर, ब्रैडिस्तान और कुछ तंज के साथ इस्लामाबाद। ये बात सब मानते हैं कि यहाँ के पाकिस्तानी खास पाकिस्तानी अंदाज में रहते हैं और लगता नहीं कि आप इंग्लिस्तान के किसी शहर में हैं। इस पर कुछ लोग एतराज करते हैं, कुछ के लिए ये काबिल फख्र बात है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये कोई अनहोनी बात नहीं। तकरीबन फ्रॉम अर्ली 50s जो इधर लोग आए हैं ज़्यादातर, अब से वहाँ उस वक्त तक से यहाँ तक अभी तक ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हुए। वो क्यों? मेन सबसे बड़ी जो वजह है वो है रिलीजन और कस्टम एंड ट्रेडिशन। इनकी जो ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, वो हमसे टोटली डिफरेंट है। अगर मज़हब और कस्टम्स नहीं मिल सकते आपस में दो कम्युनिटीज़ के, तो फिर हमारे यहाँ के लोग क्यों आते हैं? ये यहाँ के गोरे 300 ईयर बिफोर वो वहाँ क्यों गए? वो जो कुछ करने गए थे वो हमने उसका ड्रीम भी अभी नहीं रहेगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। ब्रैडफर्ड शहर की आबादी में 15% पाकिस्तानी हैं, जिनमें से 90% मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। शायद इसलिए ब्रैडफर्ड देसी खानों की जगहों की वजह से बहुत मकबूल है, इस हद तक कि उसे करी कैपिटल ऑफ यूरोप माना जाता है।
मुमताज़ एक ऐसा ही मशहूर रेस्टोरेंट है जहां अमिताभ बच्चन भी खाना खा चुके हैं और मलका बरतानिया भी। मुमताज़ रेस्टोरेंट की कामयाबी खुद एक कहानी है जो कुछ जवाब भी देती है लेकिन साथ साथ कुछ अहम सवालात भी करती है। जब मैंने आपके रेस्टोरेंट की वेबसाइट देखी तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी कि इन द मेमोरी ऑफ माय लविंग मदर। जी जी। तो वो कहानी क्या है? मेरे वालिद साहब ने हमको और मेरी अम्मा जो हैं उनको 1971 में हमको यहाँ लाए। ठीक है। 1971 मैं उस वक्त 12 या 13 साल का था। सही। तो स्कूल छोड़ा तो मैंने टेक्सटाइल में रात को काम करना शुरू कर दिया। तो फैक्ट्री से मैं काम छोड़ के आ रहा हूँ, सुबह 6:30 बजे घर पैदल जा रहा हूँ तो देखा कि यहाँ एक चार दुकानें हुआ करती थी छोटी छोटी, यानी उनके ऊपर कोई रिहाइश नहीं थी। एक दुकान जो है ना उसमें सेल लगी हुई थी। तो मैंने जाके अम्मी को कहा कि भाई वो एक दुकान सेल पर लगी हुई है, क्यों ना हम थोड़ा सा वहाँ पे खाने वाने का, जैसे नहीं वो दाबा होता है पाकिस्तान में, एक खोखा जिसको आप कहते हैं, वो खोल लिया जाए। मुझे याद है कि 1500 पाउंड मेरे माँ ने जोड़ा हुआ था, मैंने जो तनख्वाह लेके आता था तो माँ को देता था, तो वो पैसे जोड़े हुए थे। तो फॉर्चुनेटली उस बंदे ने मांगा भी 1500 पाउंड ही उस दुकान का, और बस सब कुछ लगा दिया उसके ऊपर। सब जो था वो लगा दिया। अब ये जगह थी 4 मीटर बाई 3 मीटर। अच्छा। यानी आप जगह देख लें कितनी बड़ी जगह थी। 4 मीटर बाई 3 मीटर, यानी एक खोखा ही समझ लें ना पाकिस्तान का। तो वालदा जो है वो क्या करती थी कि रात को घर में चीज़ें बनाती थी। मैं रात को काम कर रहा हूँ फैक्ट्री में अब भी। अच्छा। यानी 6 महीने मैंने ऐसे काम किया है कि फैक्ट्री में रात को पूरी शिफ्ट लगाई काम की, सुबह 6:30 बजे छोड़ा, घर आया 7:30 बजे सोया। माँ ने मुझे 10:30 बजे जगा दिया। जो रात को उन्होंने बनाया हुआ था खाना वो लाता था मैं यहाँ पैदल ला के, दिन को बेचा पूरा दिन, यहीं से इसको खोखे को बंद किया और फैक्ट्री में चला गया। अगर सही बताएं, ये जो स्टार्स आते हैं आपके यहाँ, जी जी, और जो क्वीन आई थी आपके यहाँ खाना खाने, तो इन लोगों से भी आपने पैसे लिए थे या ये आपके गेस्ट्स थे? क्वीन से हमने पैसे नहीं लिए, क्वीन से हमने पैसे नहीं लिए, और ना ही वो एक इट वाज एन ऑनर फॉर मी कि भाई हम देखें, क्वीन ने पर्सनली मेरा ये रेस्टोरेंट चुना। ज़िंदगी में आपको बताऊं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा क्वीन ने अपना खाना खाया। पहले तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट ये थी कि मैं क्वीन से कैसे मुखातिब होऊंगा। तो ज़ाहिर है उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपने पहले योर मैजेस्टी कहना है, फिर मैम कहना है, यानी एक प्रोटोकॉल का तरीका है। आलिया, मैं आपसे सच्ची बात करता हूँ, 5 मिनट के बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। मुमताज़ पाकिस्तानी होते हुए, इतने कामयाबी हासिल करते हुए इस मुल्क के अंदर, जो मुल्क अपना नहीं है, मतलब घर अपना होगा, सब कुछ होगा, उससे क्या एक महसूस होता है? एक वजह है ना कि किसी और की टर्फ पे जाके कॉन्कर करना। देखिए ना, दौर कैसे ही पलटा खाता है कि कहाँ हमारे वालिदैन आके इनके लिए काम करते थे। अब 30 साल का अरसा भी नहीं गुजरा है, मैं हूँ, मेरे लिए 150-200 गोरा काम करता है। अब पैसे तो हम सब ने कमा लिए हैं, लेकिन औलादें खो दी हैं। क्या आपको लगता है वाकई में? ये कड़वी सी बात है। हाँ। मैं कितना भी यहाँ पे वेल ऑफ हूँ या कितना भी तरक्की कर जाऊँ, मैं पाकिस्तानी ही पहचाना जाऊँगा। सही। मैं मुसलमान ही कहलवाऊँगा। ठीक है जी, मैं कभी भी गोरा नहीं हो सकता। ठीक है, भले मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, वो ब्रिटिश हैं, जब वो भी बड़े होंगे तो वो मुसलमान ही पहचाने जाएंगे, वो पाकिस्तानी ही पहचाने जाएंगे। ब्रैडफोर्ड के ज्यादातर पाकिस्तानी 60 और 70 की दहाइयों में कम तनख्वाहों पर लंबी लंबी रातें फैक्ट्रियों में काम करने आए थे। बाद में फैक्ट्रियां जब बंद होने लगी तो लोगों की माशी सूरत हाल पर फर्क पड़ा, लेकिन वापस जाना नामुमकिन था और अब एक नई नस्ल पैदा हो चुकी थी जो थी ब्रिटिश पाकिस्तानियों की।
आज भी पाकिस्तान से या तो शादी के जरिए या खानदानी स्पॉन्सरशिप से लोग यहाँ आते हैं। इनको न्यू अराइवल्स कहा जाता है। उनकी जिंदगी के कुछ और ही मसाइल होते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है और ये मेरा मुल्क है। मुझे आज भी वो दिन याद है जबकि मेरा जहाज पहली बार मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर उतर रहा था। शुरू के दिन तो बहुत ही मजे में गुजरे। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे ब्रिटेन में मुझसे ज्यादा अहम शख्सियत कोई है ही नहीं। फिर धीरे धीरे भीड़ गायब होने लगी। बच्चे स्कूल चले जाते थे और बाकी सब लोग अपने अपने कामों पर। पीछे रह जाती थी बड़ी खाला, मैं और टीवी। ब्रैडफोर्ड में लगता है कि हर एक ने बर्तानिया में होने का फायदा नहीं उठाया। लोगों की कमाइयों से मीरपुर में बड़े बड़े बंगले तो बन गए, लेकिन यहाँ पाकिस्तानियों की तालीम सबसे कम है। इस शहर में क्राइम भी बहुत ज्यादा है और गुर्बत भी। एक स्टडी के मुताबिक पूरे इंग्लिस्तान में ब्रैडफोर्ड गन क्राइम के लिहाज से बदतरीन जगह है। डॉक्टर मोहम्मद अली QED के जरिए पिछले 20 सालों से ब्रैडफोर्ड में मुकीम पाकिस्तानियों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ उसकी, यहाँ पर जो नेशनली तकरीबन 50% बच्चे 16 साल के 5 सब्जेक्ट पास करते हैं GCSE। हाँ। पाकिस्तानियों की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 20, 25, 30। तो आपको देखा है कि 50 से है। और इसके बरक्स दूसरी जो कम्युनिटी जिस तरह के यहाँ इंडियन कम्युनिटी है या चाइनीज़ कम्युनिटी है, उनकी परसेंटेज है 77, 78। मैं ये समझती हूँ, मेरी अपनी ज़ाती सोच है, मुझे पता है कहाँ तक गलत है कहाँ तक सही है। मुझे ये लगता था कि भाई जो हमारे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं, तो यहाँ की कोई और चीज़ तो मुझे इतने मज़े की नज़र नहीं आती। महंगाई यहाँ ज़्यादा है, मेहनत यहाँ ज़्यादा करनी पड़ती है, सर्दी यहाँ बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब मुश्किल हालात होते हैं। और एक चीज़ जो उन्हें अट्रैक्ट करती है यहाँ रहने में, वो ये है कि उनके बच्चों को वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो दुनिया में और लोगों को मिलती हैं, जिसमें मेरी नज़र में एजुकेशन वुड प्ले अ वेरी बिग रोल। कि लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चों को तालीम अच्छी मिले, मगर लग रहा है कि जो तालीम के हालात हमारे वहाँ पाकिस्तान में हैं, तो वो हमारी कम्युनिटी साथ लेके आती है। साथ लेके आती है। बल्कि ये हमारी कम्युनिटी का, खासकर पाकिस्तानी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनका सबसे बड़ा मसला ये तालीम है। क्या हुआ, गलती किसकी है इसमें? इसमें ये पता है, आप जिससे पूछेंगे तो वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में हर एक की कुछ ना कोई गलती है। नंबर 1 जो वालदेन की भी गलती है। वालदेन हमारे अगर पूछें, वो क्या कहते हैं, रेट्रिक रियलिटी है। रेट्रिक आपको कहेंगे कि हम बच्चे चाहते हैं कि पढ़ें, ये करें, वो करें, हम सब वालदेन ये चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, हकीकत कि आप क्या कर रहे हैं उनके बारे में। और आप देखेंगे कि वो कभी स्कूल भी नहीं गए टीचर से मिलने के लिए। अब देखेंगे यहाँ ब्रैडफोर्ड में अगर आप फिरें तो आप देखेंगे कि 200,000, 2 लाख, 3 लाख पाउंडों के घर हैं, लेकिन आप जाएंगे घर में तो उनमें किताब आपको नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब है कि आप बहुत सारे नौजवानों के साथ भी काम करते होंगे और आप समझते होंगे कि पाकिस्तानी या ब्रिटिश पाकिस्तानी अब तो है, वो नौजवान कैसे सोचते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बच्चों ये बहुत कम है। ये वो आज से 20-30 साल पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो इतना एम्बिशियस नहीं। खासकर जो यहाँ के बच्चे ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी हैं, वो इतने एम्बिशियस नहीं है। वो बस वो पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप। जो दूसरे जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ मिलकर जो करते हैं वो भी यही करते हैं। मगर ये पीयर ग्रुप एक IT गीक्स का भी बन सकता था अगर बनना चाहता है ना, मतलब ऐसा भी हो सकता। अब भी जो हमारे जो वालिदैन काम करते हैं, वो बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते। या वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसे भी बिजनेसमैन, जब एक महफिल में उनसे पूछे गया एक बिजनेसमैन से कि आपके बच्चे कितने बड़े हो गए, तो उसने कहा है कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है। तो क्या है कि लोग ऊपर जाते हैं, वो इस तरह कहता है कि जब मैं सुबह जाता हूँ वो सोया होता है, या आता हूँ उस वक्त भी सोया होता हूँ, मैं उसको बेड पर देखता हूँ।
तो बच्चों को टाइम देना बड़ा ज़रूरी होता है। ये जो है तो बड़ा ज़रूरी, लोग हमारे बहुत वालिदैन ने मेहनतें की हैं, लेकिन उस मेहनत में अपने बच्चों को निगलेक्ट किया है। जब मेरे वाला साहब आए थे तो वो कहते कि हालांकि वो खुद कभी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो सोचते थे कि घर एक इन्वेस्टमेंट है फिज़िकल, और बच्चों की तालीम में वो एक इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद में रिज़ल्ट आएंगे। तो वाकई उन्होंने जो विजनरी सोचा, अगर मैं ना करता तो आज मैं भी टैक्सी ड्राइवर होता। ब्रैडफोर्ड पर मबनी फिल्मों, किताबों और लंदन में रहने वालों से ये सुना था कि यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन पर्दा करती हैं और अपने घर के मर्द हजरात से पूछे बगैर फैसले नहीं किए जाते। ये बात तो मुझे नज़र आई कि ब्रैडफोर्ड का माहौल देखने में पाकिस्तान के बड़े शहरों के मुकाबले में ज़्यादा कंजर्वेटिव लगा और मुझे ख़वातीन से बात करने में एक हिचकिचाहट भी हुई। इसलिए जब मैं एशियन विमेन सेंटर पहुंची तो मेरा ख्याल था कि बहुत सारी पाकिस्तानी खवातीन बैठी घरेलू मुसीबतों की बात कर रही होंगी, लेकिन यहाँ एक जिंदा दिल कंप्यूटर क्लास हो रही थी। ये जरूर था कि मुझे इस क्लास की फिल्म बनाने की इजाजत नहीं मिली। ज्यादातर खवातीन को डर था कि टीवी पर उन्हें देखकर उनके घर के मर्द खुश नहीं होंगे। तो जब मीना और फखरा से मेरी बात हुई तो ये तय कर लिया गया कि घरेलू बातें नहीं हो सकती। आप कब आई? मैं 3 साल हो गया शादी करके आई? जी। कहाँ से? मैं रावलपिंडी से। अच्छा, और जिनसे आपकी शादी हुई वो यहीं थे पहले से? और आप यहाँ पैदा हुई हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान में मीरपुर में पैदा हुई थी। उर्दू का क्या मसला है? उर्दू का मैंने I didn't pick it up। यहाँ पे स्कूल आई थी और एवरीथिंग, यहाँ की एजुकेशन मैंने ले ली। और you help me out? Yeah. Yes, and that's it। जैसे मेरे हस्बैंड को ले लें, उन्हें इंग्लिश ही समझ आती है और कुछ भी नहीं आता। उन्हें इंग्लिश समझ में आती है मगर आपकी उर्दू बेहतर है। Yeah, because मैं पाकिस्तान से आप कैसे कम्युनिकेट करती हैं? लर्न करती हूँ उनसे। फिर मैंने क्लासेस भी ली है ना। अभी मैंने लास्ट ईयर में लेवल 1 पास किया है उन्हीं के लिए, बिकॉज उन्हें इंग्लिश समझ आती है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं होती थी मगर इतनी ज्यादा नहीं होती थी। वो कहते थे, मैं कहती आप फिर बोले क्या बोला आपने? याद कहती थी यस। नो आता था फिर भी यस कह देती है, अगर यस आता तो नो कह देती थी, इसलिए लर्न करना पड़ा। It's like this। अभी you know, she could understand me, I could understand her, she's learning of me, I'm learning of her। So ये उर्दू बोल सकती है, हम नहीं बोल सकते, पर आज हमने लर्न कर ली इससे। मतलब ये जो सारा अभी जो कंप्यूटर कोर्स आप लोग ले रहे हैं ये बच्चों के लिए ले रहे हैं, बिकॉज बच्चे कहते हैं कि मम्मी हमें ये आता है, आपको नहीं आता है, तो इसलिए हम तो वो जरा आते हैं कि मम्मी को यूं समझते हैं। हाँ, इसलिए फिर हम कहते हैं कि जब तक वो बड़े होते हैं हम भी कर ले, बिकॉज वो ऐसे ना कह सके कि हमारी मम्मी को ये नहीं आता है। एक एम्पावरमेंट की फीलिंग हो रही है कि जैसे कि एक है। यस है, हम लीडर हैं। यस, उसके साथ साथ क्या और क्या करना होगा? कंप्यूटर एंड व्हाट एल्स इज ऑन योर लिस्ट? एम्बिशन मेकिंग के और कोर्सेज, जो इंग्लिश वाले कोर्सेज, उर्दू वाले कोर्सेज मेरे लिए। मैं तुम्हें दे दूंगी ना, उर्दू के कोर्सेज मुझसे ले लेना। Yeah, learn of each other and broaden our own knowledge. Every day you're learning something new. I need to do everything, you know। मुझे ऐसे मैं करना चाहती हूँ, वैसे होती हूँ, मुझे सब कुछ आए, जो मैं नहीं कर सकती वो भी मैं करूँ। तो जब मैं नई आती थी ना, तो मेरी बेटी भी तब नहीं थी, तो मैं सारा दिन घर में बैठी तो सोचती रहती थी कि अगर ऐसी रही तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। जब इतनी सर्दी होगी और इतनी बारिश होगी, और एक तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब आप लोग मुझे बताएं क्यों रहते हैं लोग यहाँ पे? यहाँ पे आई थिंक जो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है ना, और फ्रॉम द गवर्नमेंट and also independent on yourself as a woman, you could do a lot more in this country। यहाँ की लाइफ ऐसी है कि आज़ादी है यहाँ पर। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि कोई औरत शॉप पे चली जाए तो कहते हैं हाय ये औरत गई थी शॉप पे। तो यहाँ पर आप कुछ भी करें, आप अकेले बाहर जाएं, आप कहीं पे जाएं, कुछ भी करें, कोई ये नहीं कह सकता ये औरत अकेली गई थी बाहर। इस वक्त एक मुसलमान औरत पाकिस्तानी होना यहाँ एक एनवायरनमेंट में मुश्किल है, आसान है? आसान है, आजकल के दौर में आसान है, पहले बहुत मुश्किल होता था। क्यों?
क्योंकि अभी इधर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हो गए, तो पाकिस्तानियों की फैसिलिटीज ज़्यादा हो गई यहाँ के रहने वालों से भी। मतलब पाकिस्तानों का रूल दिल पाकिस्तान, that's what it is, yes. तो अभी हम समझते हैं कि इजी है। गोरों से दोस्ती है? है सभी से है। That's nice. मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं कि वो अपनों से ज्यादा बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। हमें इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, तो अगर अपने किसी के सामने बोले ना तो हंसते थे आगे से, दिखाते थे कि आपने ये भी रॉन्ग किया, ये भी रॉन्ग किया। अगर इनके सामने बोले ना तो ये आगे से हंसते नहीं है, ये कहते हैं कि आपने यहाँ से रॉन्ग बोला है, यहाँ से राइट करें। वो मदद करते हैं। इस प्रॉफिट में हम एशियन बहुत ही ऐसे करते हैं जो नाक ऊंचे रखते हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। गोरे नहीं करते ये। नहीं, ये नहीं करते। हम उनकी कंट्री में हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करें जैसे वो हमको रिस्पेक्ट करें, हमारी कंट्री को रिस्पेक्ट करें। इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ सच बोलना सीखा, मैंने यहाँ जुर्रत सीखी कि अपना मौक़िफ़ अपना वो दूसरे को बता दीजिए। यहाँ हमने औरतों की इज्जत करनी सीखी। फिर दूसरी ये है कि हमारे जितने राइट्स हैं उतनी ऑब्लिगेशंस भी हैं, जो हमारे हकूक़ हैं वैसी हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। 40 साल पहले जब शेख इलाही मकसूद ब्रैडफोर्ड आए थे तो इस शहर की शक्ल बहुत मुख्तलिफ थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस शहर का रंग बदलते हुए देखा। कुछ लोग चंद हजार मीलों दूर से एक और रंग और मजहब लिए यहाँ आने लगे, और उनकी आमद से यहाँ रहने वाले चंद और हजार लोग अपना रंग और मजहब लिए ब्रैडफोर्ड छोड़ने लगे। शेख साहब और उनकी बेगम बरसों से हालात बदलते हुए देख रहे हैं। जब आप आए थे 60s में जी, तो अंग्रेजों का पाकिस्तानियों के साथ बर्ताव तब कैसा था और अब आपको कैसा लगता है? जब भी तासुब था, रंग का था, और अब भी है। मसलन हमें मकान अच्छे इलाकों में नहीं मिलता था, हमें अच्छे मकान नहीं लोग बेचते नहीं थे। मैं जब 62 में यहाँ आया हूँ, इस घर में आया हूँ, मैं 66 में आया, सॉरी, तो यहाँ पर बिल्कुल हमारे सामने थे, अंग्रेज रहते थे। 2-4 दिन के बाद जाने लगे वो, तो मैंने इनसे पूछा भाई कि क्या बात है, क्या आप जा रहे हैं? हम तो अभी आए हैं, आपसे मिले ही नहीं। कहने हमें पता होता आप ऐसे तो हम ना जाते। तो महज हमारे आने की वजह से वो चले गए। भाई कहाँ जाते हैं ये लोग? ये तो मिडिल क्लास किस्म के थे, मिडिल क्लास के थे, ये कहाँ गए? ये तासुब जो है बाज़ औक़ात आपको जब आप किसी चीज़ पर ज़द पड़ती है, मसलन आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं नहीं मिलती है, आप जॉब लेना चाहते मिल रहे, जब महसूस होता है। वरना तो यहाँ पर आज़ादी से लोग रहते हैं, जो कानून पसंद शहरी हैं उनको कोई डर नहीं है। तो ज़्यादातर पाकिस्तानी फिर किस तरह उसका एक रद्द अमल क्या होता है? रद्द अमल जो मेरी नस्ल थी ना, उस नस्ल में तो वो टिमिड थी, वो बर्दाश्त कर जाते थे। अब नहीं करते हैं। मैंने ये सबक सीखा कि मेरी नस्ल के लोग थे या अब नई जनरेशन है, इन सबको थोड़ा सा रेजिस्ट करके कोशिश करनी चाहिए, बजाय नाराज़ हो जाने के और ये समझ लेने के भाई तासुब हो रहा है। अपना हक मनवाने के लिए थोड़ी सी कोशिश, एफर्ट तो होनी चाहिए ना। शायद इसमें शेख साहब फ़र्क ये हो कि आपकी जो नस्ल आई थी, मतलब जाहिर है किसी और मुल्क में आए थे, मगर जो आपकी अगली जो जनरेशन है उसको लगता होगा शायद कि ये हमारी तो इक्वल राइट्स हैं, हम ब्रिटिश हैं। ऐसा नहीं था। मतलब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं हूँ, आई एम व्हाट आई एम, आई शुड बी प्राउड ऑफ इट। जब मैं आया, ईद का दिन था ब्रैडफोर्ड में, ईद की नमाज़ पढ़ने गया तो शलवार और शेरवानी पहन कर गया। तो हमारे एक पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने कहा लो शेख साहब आज कार्टून बने आ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में। हाँ, तो मुझे बड़ा वो हुआ। आपने ये सुनना क्या उनको कहते हुए? उन्होंने किसी और से कहा था, लेकिन वो मैं इसमें थोड़ी सी जुर्रत की ज़रूरत, मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा जी अब किसी अंग्रेज से पूछिए मैं कार्टून नज़र आ रहा हूँ कि आप नज़र आ रहे हैं कार्टून। ब्रैडफोर्ड में ज़्यादातर चेन माइग्रेशन होती है। एक साहब आते कहीं काम करने के लिए, फिर उनका ख़ानदान आ जाता, फिर किसी फैक्ट्री में कोई नौकरी निकलती तो उनके भाई आ गए, फिर बच्चे बड़े होने लगे तो अपनी बेटी की शादी पाकिस्तान में अपनी बहन के बेटे से करती तो वो आ गया, और फिर उसका ख़ानदान।
यहाँ इतने सारे पाकिस्तानी होने से कम्युनिटी की कुव्वत को फायदा हुआ है, लेकिन शायद एक तरह से नुकसान भी। नुकसान इसलिए क्योंकि इतने सारे एक तरह के लोग जब ज्यादा हो गए तो कुछ और लोगों की नजरों में खटकने लगे। उनकी आवाज अब ज्यादा जोर से सुनाई देने लगी। एक नस्ल यहाँ मेहमान के तौर पर आई थी, मुश्किल तरीन नौकरियां करने। अब उनकी अगली नस्ल बरतानवी है, जो अपने हुकूक भी जानती है और उनको हासिल करना भी। साथ साथ वो अपने आप को पाकिस्तानी और मुसलमान भी समझती है और इसलिए तासुब का निशाना भी बनती है। यही कहानी थी ब्रैडफोर्ड रायट्स की, जो 2001 में यहाँ इस पब से शुरू हुए। चंद मुसलमान और बरतानवी गोरों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। बोतलें टूटी, पत्थर मारे और काबू से बाहर आ गई। मैंने आसपास के चंद पाकिस्तानी लोगों से इन हंगामों की बात करने की कोशिश की तो सब अब भी घबराए हुए लगे। किसी ने बात नहीं की। इन हंगामों में कोई 1000 नौजवान मुलव्विस थे। 300 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स जख्मी हुए और इतनी ही गिरफ्तारियां हुई। 200 लोगों को सालों के लिए जेल भेज दिया गया और बरतानिया दंग रह गया। जाहिर है ये नफरतें लोगों के दिलों में सालों से होंगी, जो कभी मुंह पर नहीं आती थी, लेकिन इन हंगामों में इस कदर सख्त सेंटेंसेस के बाद समझ में आया कि सब कुछ ठीक नहीं है। मैं यहाँ अपने छोटे से फार्म पर बने गेस्ट हाउस में बैठी यही सोच रही थी। इस अजीब दुनिया की कितनी खूबसूरत शक्ल है, लेकिन कितनी सख्त सच्चाइयां। तारिक महमूद और अकी नवाज कश्मीर ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर एक खास प्रोग्राम होस्ट करते हैं। उसका नाम है द पॉइंट। ये प्रोग्राम पाकिस्तानी और कश्मीरी घरों में बहुत देखा जाता है। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसके दोनों मेजबान बरतानिया की सियासत, अपनी शनाख्त, दुनिया में जारी जंगें, माशी सूरत हाल और मगरबी साम्राज्य पर खुलकर बात करते हैं। पिछले 40 सालों से तारिक बरतानिया में है, मगर उन्होंने अपने देश से नाता नहीं तोड़ा। वो यहाँ बहुत जिंदा दिल एक्टिविस्ट रहे हैं और सिस्टम की अदम मुसावात की मुजाहिमत और मुखालफत करने से नहीं घबराते। साथ साथ अपनी पोटोहारी जबान को जिंदा रखने के लिए बच्चों की किताबें भी लिखते हैं। 1960s में हम लोग पाकी थे। पाकी अंग्रेजों की एक इट वाज अ स्वेयर वर्ड, हमें ये गाली देते थे। दैट वाज अ टर्म जो हमारी बेइज्जती होती थी। उसके बाद हमें इन लोगों ने काला कहा, काले के साथ इन्होंने गालियां निकाली। जब आगे चलते आए, अभी इन्होंने सबको मुसलमान की बना रखा है। दहशतगर्द है, बिल्कुल दहशतगर्द है। हमारे बच्चे भी दहशतगर्द। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे एक बार पूछा कि क्या हम लोग अमन पसंद है, डू वी लाइक पीस और डू वी वांट वॉर। मेरे बच्चे क्यों पूछ रहे हैं? How are you fighting this battle? Well, my primary concern is I live here. But on the one hand, we are fighting against the intense anti-Islamic racism that exists in this country. That the issue, we say that the issues of our time are not religious, are not theological, they're political and they're economic. Religion is a drama. Religious issues that have been made are a drama. That is so here as well. Here, we're all terrorists. Anybody that somebody doesn't like is a terrorist. Okay, now fighting the anti-Islam phenomenon is one thing. How you choose to fight that battle is another. And the way we see it, when we see Muslims living in Britain, we see that they are becoming more Islamic or more Talibanized, for that matter, to fight anti-Islamism. In this country, there are no raving mullahs with millions of people following them. That is what the British government would want you to believe. There is no Talibanization here. The question of religion, the biggest powerful religious groups here are the Jews, the Christians, the Hindus, and the Christian right, the Jewish right, and the Hindu right. They're incredibly powerful here. How come they're not terrorists?
How come there is no debate on the politicization that's taking place within there? The reason behind that is it does not suit the American agenda. No, the reason behind that is also that when the 7/7 bombings happen, then people then, open their eyes and ask questions which they probably ignored before. That's just not true. But when This has been said to us since 1967. When I came to Britain, they said integrate. We said, okay. When did we say we won't integrate? We speak English, we wear your clothes, we'll do everything else. They did not wake up as a result of what happened in London. The difference is that life here is more valuable than the life in Pakistan. is that why you would choose to live here? This country belongs to me because in 1846 they sold my ancestors. Whenever we look at British colonial history, it belongs to us all. The British went over to India not through visas but through the barrel of a gun. We came to work in the factories. What do you think was that turning point that made you start thinking in a certain way? The discrimination that we faced in Britain in the early days of the 60s and 70s was very intense. I still remember a little white boy came and rubbed my skin to see it would come off. And I used to believe that white people were superhuman when I came because, Gores were powerful. Inke paas har cheez hai. They had the weaponry, they had the army, they had everything. And one day I was being attacked in a playground and I went like that and I hit a Gora and his nose bled. And I thought, his blood is red. I didn't believe. I was very young then. I said, he doesn't like pain just like me. And I realized, no, we've got to fight. I had no choice because they were knocking on our doors. That's not to say all white people are like that. Of course. That's nothing to do with that. These were the particular bunch of racists. White people, racists, they used to come to attack us. We resisted and the police then, as now, arrested us, victims. We became the terrorist. In fact, I was charged as a terrorist and I was imprisoned as a terrorist. Which was in? In 1981. And so the turning point was to say, well, actually, we've got to have a better world. This is fundamentally wrong what's going on. Now, you can either burn up with anger and frustration or do something about it. We chose to fight back and we paid some prices for it. अब मैं भूल गई कि मैं क्या सोचकर ब्रैडफोर्ड गई थी। इन चंद दिनों और कुछ मुलाकातों ने मुझ पर बहुत असर किया है। कुछ बरतानिया की छुपी सियासत का भी अंदाजा हुआ है, कुछ लोगों के छुपे जज्बात का भी। कहीं देखकर लगा कि कितनी भी उम्र यहाँ गुजार ली जाए, एक खला हमेशा महसूस होता है। कहीं दूर दिल के किसी कोने में ये बात रहती है कि घर शायद कहीं और है और हमारा उससे फासला बहुत ज्यादा। मुझे याद आ रहा है कि किस तरह शेख साहब ने मुझसे यही बात की और उनकी अगली नस्ल अक्की का भी यही ख्याल था। यहाँ पर जब रहने का फैसला किया तो मैंने दिल में सोचा दिस इज़ माय होम। तो मुझे पीस ऑफ माइंड मिला, मुझे सुकून मिल गया। मैं बड़ा वो टूट फूट रहा था। मैं वैसे तो आज भी पाकिस्तान के लिए वो मोहब्बत में, मेरा दिल चाहता है मैं वही रहूं, सही बात तो ये है। लेकिन वहाँ पर जो तब्दीलियाँ आई हैं वो जो है ना, इज्जत नफ्स वहाँ कदम कदम पर मजरूह होती है। लेकिन यहाँ आज भी मैं गैर हूँ, आज भी मैं ब्रैडफोर्डियन नहीं हुआ। कोई मुझे तो ये मुझे यॉर्कशायर मैन नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये और फिर दूसरे है ना फ़र्क जो है वो अंग्रेज़ मुंह से नहीं बोलते हैं। The first day I went back after 25 years of not going to Pakistan, I went back, and as soon as I opened that door, as the door opened on the aeroplane, I felt for the first time in my life a human being. The first time I felt equal. Whatever the problems are in Pakistan, I mean, it's not, politically it's a very unstable country, but I didn't have to do these battles of racism and arrogance and ignorance and all these issues were suddenly thrown away. In some ways I wish I would have stayed in Pakistan. I wish my parents wouldn't have dragged me here, because they did drag me here. The story is that I was dragged down to Islamabad airport, I was dragged onto the aeroplane, literally dragged, but and I didn't want to leave, and to some degree I wish I would have stayed there. And inshallah one day, and very soon, I've been talking about it a long time, but I will go back to Pakistan. What stops you from doing that right now? At the moment, I mean, all it is that I like to cause trouble here in England and in Britain, and I'm getting very good at it. अब मैं सोचने पर मजबूर हूँ, मैं कहाँ चली घर से दूर एक घर बनाने। पाकिस्तान में रहकर दिल करता है छोड़ दो, कहीं और जाकर हर वक्त पाकिस्तान ही याद आता है।
और अब ये सब कुछ देखकर मुझे लगता है कि मैं अपने बेचैन मुल्क में ही बहुत बेहतर हूँ, बजाय इसके कि किसी और मुल्क में एक बेचैन जिंदगी गुजारूं।